and welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. But first of all, as usual, the daily ritual. First of all, we will check out the contents. So these are the topics which we are going to do today, and the very first one is team from Telangana visits Buddhist caves in Sri Lanka. There are a lot of information given in this which we will be covering in today's analysis, and this is of the art and culture portion, GS paper 1. Next, 3 Hoysala temples on UNESCO heritage list. What sets them apart? So this is from the Indian Express. Okay, so we will be covering this. This is from the Hindu, and both of these are from Indian Express. Okay, again this is of the GS paper 1, art and culture, the same thing. Next is the Five Eyes Alliance, which recently came into limelight, and ये limelight में क्यों आया, उसके पीछे का reason ये था कि ये जो है इंडिया कैनेडा रिलेशनशिप जो अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है because of खालिस्तान issue, right? So that is the reason why it is in news, Five Eyes Alliance, and this is again in GS paper 2. Right, this is of the IR, right? This is of the IR. Let's move on further. So now the courses of Tathastu, these are the courses. First one is the MSLV NCERT module and philosophy optional. Admissions are going on, and when it comes to the PSLV, under this only pre-sure has been launched, wherein 6,000 plus MCQs will be solved, the explanation and everything you will be getting related to that. So that has been launched. If you want to enroll on that, then definitely you can. And from here you can collect the information, everything. कहाँ से जो है सारा information मिलेगा, तो उसके लिए tathastuics.com आप यहाँ पे जा सकते हो, या फिर you can call on these numbers, या फिर you can visit this address also. This is our office address, whichever you feel कि जो भी आपको जिस तरीके से सही लगे. Okay, let's get started with the very first topic, and ये जो है हमारा team Telangana visits Buddhist caves in Sri Lanka. This is the picture, and this is the article. अब एक एक करके जो है हम इसको कवर करते हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए जो नाम दिया हुआ है, that is the बुधावनम टीम. ठीक है, अब ये जो बुधावनम टीम है ये कहाँ से गए हैं? तेलंगाना से. अब ये बुधावनम एक्चुअली है क्या, तो ये आप ये देख सकते हो, दिस इज द बुधावनम प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको पूरा डेवलप किया गया है. दिस इज़ अ रियली वेरी ह्यूज साइट, एंड आप कह सकते हो कि टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज के पर्पज से जो है इसको डेवलप किया गया है. इसमें कुछ खास बातें हैं जो आई विल बी लेटिंग यू नो कि क्या चीज़ें हैं. एक तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया गया है नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुना सागर. आप सभी ने जो है इस सागर के बारे में नाम ज़रूर सुना होगा, राइट? सो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड नियर बाय दिस this Nagarjuna Sagar only, and apart from that ये जो है ये पूरा एरिया, दिस पर्टिकुलर बुद्धिज्म tourism center, this is the largest. क्या है ये? This is the largest in Asia. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बुधावनम के जो मैं आपको बता रही हूँ. कहाँ पे डेवलप किया गया है? तेलंगाना में कहाँ? नागार्जुना सागर के पास. वेयर इट इज द हैदराबाद, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टूरिज्म सेंटर इन एशिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और बहुत बड़ी खासियत है, और वो खासियत ये है कि अमरावती स्तूप, आप सभी लोगों ने जो है अमरावती, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट अमरावती स्तूप. तो अमरावती स्तूप जो है उसके ही साइज का बनाया गया है. अब अमरावती स्तूप की कहानी जान लें, तो उससे पहले जो है आपको स्तूप के बारे में बता दें. स्तूप जो है स्तूपास, राइट? स्तूपास का ओरिजिनेशन जो कि इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, वेयर इन द PYQ
कौन सा ईयर? 2023, 2023, ठीक है। तो 2023 में जो है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था स्तूपा को लेकर के, वेयर इन दे सेड दैट कि स्तूपा का ओरिजिनेशन जो है वो बेसिकली बुद्धिज्म के टाइम पीरियड से ही हुआ है, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये जो है पहले से इट प्री एग्जिस्टेड, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था बुद्धिज्म से, ओके ये उससे बहुत पहले ही एग्जिस्ट करता था, राइट। अब यहाँ पे कैसे हम इस चीज़ के ऊपर आए कि ये पहले से एग्जिस्ट करता था, तो उसके पीछे की बहुत सिंपल सी आप स्टोरी समझ सकते हो, एंड उसको बहुत सिंपल से यू कैन रिलेट हाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ऋषि मुनीज ऑफ द ओल्डर टाइम पीरियड। वो लोग क्या करते थे कि ध्यान लगाते थे, और ध्यान जब लगाते थे तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहते थे ध्यान में। तो जब वो ध्यान लगाते थे तो लॉट्स ऑफ डस्ट एंड द लीव्स एवरीथिंग यूज टू कलेक्ट ऑन दैम। जैसे कि मैं ध्यान लगा रही हूँ तो मेरे ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट हो जा रही थी, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें जब कलेक्ट हो गई तो वो कैसा शेप देगा, लाइक दिस। अभी यहीं पे ही जो है मैं अगर ऐसे बैठा दूँ, ठीक है, द लेग्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, ये हैंड, एंड यहाँ पर जो है इनके ऊपर डस्ट, आई एम डस्ट जो है उनका कलेक्शन यहाँ पर हो जा रहा है, द लीव्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली नॉट मूविंग। बहुत लंबे समय के लिए दैट पर्सन इज इन दिस ध्यान मुद्रा, ठीक है, ध्यान में है। तो अब ये कौन से शेप के हो गए? स्तूप का हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? दूसरा एग्जाम्पल ये है इन दी इवन नाउ ऑल्सो इन द विलेजेस यू मस्ट हैव सीन कि गाँव में क्या होता है, जहाँ पर भी लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं फ्यूनरल, किसी भी पर्सन की डेथ के बाद, तो सपोज कि उसको जहाँ पे बर्न किया जाता है तो वहीं पे ही मिट्टी से उसको इस तरीके से कवर कर देते हैं, राइट, उस पर्टिकुलर एरिया में। एंड वहाँ पे समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू, कभी कभी जो है वो लोग वहाँ पे एक प्लांट भी लगा देते जस्ट टू मार्क दैट एरिया कि वहाँ पे जो है मेरी दादी या फिर नानी जो है उनको वहाँ पे बर्न किया गया था, द लास्ट रिचुअल वाज एक्चुअली फॉलोड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि स्तूपास एग्जिस्टेड क्वाइट बिफोर, राइट। लेकिन अब इसी चीज़ को एलैबोरेट तरीके से, बेटर तरीके से कब करना स्टार्ट हुआ? ड्यूरिंग द बुद्धिज्म। अब यहाँ पर बात आती है अमरावती की। अमरावती स्तूपा वाज एक्चुअली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये क्या हो गया? कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉयड हो, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एंड ये जो बनाया गया है इसको, ठीक है, ये दिस इज ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन, जो कि अमरावती के बारे में हमको जानने को मिला है थ्रू द वेरियस सोर्सेज। तो इसको उसी हिसाब से, उसी साइज का बनाया गया है, उसका जो स्टाइल है, शेप है, डिज़ाइन है, all those things has been inspired from that of the अमरावती स्तूप, ठीक है, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि हमने this is actually built over there on the नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर डैम एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब यहाँ पे। अब नागार्जुन सागर से जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट डैम, ओके, दिस इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है, दिस इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर। दिस इज द लार्जेस्ट डैम इन दी हैदराबाद एंड एज वेल एज इन दी एशिया। अब एशिया में बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हैदराबाद में भी बड़ा है, दिस पर्टिकुलर डैम। एंड ये जो डैम है इसकी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, एंड दैट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट दिस इज द मेजरी डैम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेजरी डैम? अब ये जो मेजरी डैम होता है, राइट, ये जो डैम्स होते हैं वो ब्रिक्स से बने रहते हैं, जिसमें कि कहीं कहीं पे मोटार का भी जो है वो यूज़ होता है, राइट, मोटार का भी जो है वो यूज़ होता है। दिस हैज़ बीन एक्चुअली बिल्ट बाय दी ब्रिक्स, इनको जो है ब्रिक्स से बनाया गया है। स्टोन्स का यूसेज जो है उसको यहाँ पर
यूज किया गया है स्पेसिफिकली. Okay, now let's move on to the another important information related to these. Here you can see the complete project of the बुधावनम, राइट. ये पूरा कितना सुंदर सा लग रहा है, कभी विजिट ज़रूर करिएगा जब भी आपको मौका मिले. अब ये जो है हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लिया बुधावनम के बारे में, ठीक है. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द अदर इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर. दिस इज पावर पैक्ड. इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी. ये विजिट करे हैं 3rd सेंचुरी BC के जो बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स थे. मथाले कहाँ पे? कोलंबो कैंडी रूट में, श्रीलंका में. आपको जो है ये कोलंबो कैंडी ये सारे नहीं याद करना है, बट वेयर 3rd सेंचुरी BCE का बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स जो हैं वो एक्चुअली वहाँ पे ये लोग विजिट किए हैं. अब ये जिस साइट पे विजिट करे हैं, द साइट विच दे विजिटेड ओवर देयर, वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के जो टीचिंग्स थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दी पाम लीव्स. किस पे लिखे गए थे? तो पाम लीव्स में. फैक्ट्स मिल गए आपको यहाँ पे. सो द वेरी फर्स्ट टाइम द टीचिंग्स ऑफ बुद्धास वर रिटन एंड दोज वर रिटन ऑन दी पाम लीव्स वेयर इन दी श्रीलंका इटसेल्फ. ठीक है, तो वहीं उस प्लेस को दे हैव विजिटेड. नाउ पहले क्यों नहीं लिखे जाते थे? पहले इट वॉज नॉट अलाउड एक्चुअली. अब जो है बुद्धा जगह जगह पे घूमते थे एंड वेर एवर ही यूज टू गो ही यूज टू टीच पीपल. उनके क्वेश्चंस, उनके जो भी डाउट्स होते थे उनको उनका निवारण किया करते थे. ओके, लोगों से बातें किया करते थे, राइट. सो दैट वाज द प्लेस एंड हेंस दिस पर्टिकुलर प्लेस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वाज द first time when it was scribbled and it was scribbled on the palm leaves. बुधावनम प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसको कैसे बनाया गया है. नागार्जुना सागर के इधर बनाया गया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाया है. अब यहाँ पर बात आती है बुद्धा के टीचिंग्स की. बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में यहाँ पर जो है त्रिपिताकास यानी कि 3 पिताकास के बारे में बात किया है. त्रिपिताका बोले तो 3 पिताकास हैं यहाँ पर. पिताका, ठीक है, ट्री. अब यहाँ से आप बहुत इजीली जो है वो देख सकते हैं ट्री. दैट मीन्स ट्री. तो इट मीन्स 3 होंगे इसमें, ठीक है, 1 2 3. तो इसमें जो है एक है सुत्त पिताका, दूसरा है विनय पिताका एंड तीसरा है अभिधम्म पिताका. राइट, सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका. अब यहाँ पे जो सुत्त पिताका है, दोज आर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ओके, क्या है वो? दोज आर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. नाउ व्हेन इट कम्स टू द विनय पिताका, सी विनय मीन्स नो यू आर बेसिकली ओबीडियंट. आप जो है ना चीज़ों को मान रहे हैं, ठीक है, आप में वो पेशेंस हैं एंड आप जो चीज़ों को मान रहे हैं. तो आप यहाँ पे क्या इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं? द डिसिप्लिन्स. Right, so in this the rules of conduct and the disciplines related to monks and nuns have been written over there. कि जो भी monk है, ठीक है, जो मेल है फीमेल है जो कि एकदम फुल फ्लैश तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनके क्या कॉन्डक्ट हैं, वो विनय पिताका में लिखे गए हैं. अभिधम्म पिताका. अब ये अभिधम्म पिताका जो है दैट इज दी philosophical analysis of the बुद्धा's teachings. ठीक है, ये जो है एनालिसिस बेसिकली करी गई है उसके, तो दैट इज द अभिधम्म पिताका. सो दीज आर द 3 पिताकास विच हैज बीन मेंशन ओवर हियर इटसेल्फ. अब यहाँ पे क्या है? बुद्धा's teachings called 3 पिताकास, जिसको कि यहाँ पे सुत्त पिताका को इन्होंने जो है यहाँ पे सुत्तर लिखा हुआ है. ठीक है, द सेम थिंग, दैट इज द सेम थिंग ओनली. विनय पिताका एंड अभिधम्म पिताका हैज बीन mention over here, which were transmitted orally. देखिए, when it comes to इंडिया में सारी चीज़ें जो हैं वो ओरली ही ट्रांसमिट हुआ करती थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इवन नाउ ऑल्सो देर आर लॉट मेनी स्टोरीज जो कि जनरेशन बाई जनरेशन हमेशा से पास ऑन होती गई हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम देम टू अदर पीपल, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, यू नो, दादा से परदादा से उनके बच्चे, फिर दादा से जो है उनके बच्चे, फिर पापा से जो है हमको, लाइक दैट द इंफॉर्मेशन, द एवरीथिंग हैज़ बीन एक्चुअली ट्रांसमिटेड. यू नो, उसको जो है ट्रांसफ़र किया गया है सारी नॉलेज को. लाइक जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको कहाँ ही एक्चुअली मिल जाता है. अभी तो खैर आप
गूगल यूट्यूब है तो चीज़ें सर्च कर लेते हो, बट अर्लियर पहले तो ऐसी नहीं होती थी ना, पहले तो हम सुनते ही थे इन सारी चीज़ों की कहानियाँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओरली जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाता था, बट इसको जो है लिखा गया ऑन रिटन, दीज वर रिटन ऑन पाम लीव्स, एंड इसको कहाँ लिखा गया था? श्रीलंकन किंग थे जिनका नाम था देवनामपिया तिस्सा, देवनामपिया तिस्सा, जो कि कंटेम्पररी थे अशोक के। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज दी देवनामपिया, देवनामपिया, ठीक है, देवनामपिया, राइट, देवनामपिया। अब ये जो देवनामपिया है, यहाँ पे श्रीलंका के जो किंग थे उस टाइम तिस्सा, वो भी यूज करते थे, एंड अशोक जो है वो भी इसको यूज किया करते थे। And on this only there is a question also, PYQ prelims, again देवनामपिया से related, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने डिसाइफर किया था, अब कौन से स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था जरा बताओ तो, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कौन से स्क्रिप्ट को इन्होंने डिसाइफर किया था। तो जब उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर रहे थे, ही गॉट टू नो कि उसमें बार बार जो है देवनामपिया का मेंशन किया गया है, और वो बाद में इनको पता चला कि अरे भाई ये तो अशोक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं देवनामपिया बोल करके। ओके, आई होप दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो, तो देवनामपिया तिस्सा, और वो कंटेम्पररी थे अशोक के, and he said that this person actually, it was only after that this did Buddhist literature came into being, after that only, for the first time palm leaves पे लिखा गया, उसके बाद जो है फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है रिटन फॉर्म में मिलने लगा। अब यहाँ पे एक आचार्य जी जो है उनका नाम मेंशन है, आचार्य बुद्धा घोषा, आचार्य बुद्धा घोषा, जो कि बहुत ही फेमस थेरावड़ा बुद्धिस्ट थे, ठीक है, जो कि थेरावड़ा बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। वो इन केव्स में रहे, और यहीं पे ही उन्होंने विशुद्धि मग्ग, उन्होंने क्या लिखा है इसमें, विशुद्धि मग्ग को मेंशन किया हुआ है, ठीक, मतलब उन्होंने इस चीज़ को लिखा है। अब यहाँ पे आचार्य बुद्ध घोषा एंड विशुद्धि मग्ग तो ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, मैम व्हाट इज दिस थेरावड़ा, ठीक है। अब थेरावड़ा को जानने के लिए तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा जो बुद्धिज्म है उसमें कितने तरीके के बुद्धिज्म हैं, ठीक है। हम सभी ने पढ़े हैं, वी हैव ऑल ऑफ अस हैव रेड अबाउट महायाना बुद्धिज्म, नेक्स्ट कम्स द हिनायना बुद्धिज्म, ठीक है, देन कम्स द थेरावड़ा बुद्धिज्म, फोर्थ कम्स द Zen Buddhism, and which is the fifth one? Zen Buddhism, and then the last one is the Vajrayana. Vajrayana Buddhism. Now when it comes to the Vajrayana Buddhism, this Buddhism is the tantric form of Buddhism, ठीक है। इसमें इसको तांत्रिक बुद्धिज्म के तौर पे भी जो है, तांत्रिक बुद्धिज्म के तौर पे भी इसको माना जाना जाता है, एंड इट वाज डेवलप्ड इन 900 CE, ओके, 900 BC। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस Zen बुद्धिज्म वाज डेवलप्ड इन चाइना, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इसको फॉलो किया जाता है, एंड दिस इज अंडर महायाना सेक्ट। ये महायाना सेक्ट का ही एक, मतलब महायाना का ही एक सेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, उसी के ही अंडर आता है ज़ेन बुद्धिज्म। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी महायाना, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म। अब ये महायाना बुद्धिज्म जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, ठीक है, आइडल वर्शिप में। हिनायना जो है वो ओरिजिनल टीचिंग्स एंड ओरिजिनल तरीके का जो बुद्धिज्म को फॉलो करने का था, ही दीज आर द पीपल हु एक्चुअली बिलीव्ड इन दैट, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स बेसिकली जिसको कहा जाता है, तो उसमें ये बिलीव करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस महायाना एंड हिनायना, देखिए महायाना आइडल वर्शिप है, तो अब बात आती है बुद्धा जी। एक्चुअली बुद्धा जी क्या चाहते थे
So if you read very carefully, you will get to know that Buddha never wanted कि उनका आइडल बना करके जो लोग हैं वो वर्शिप करें। अभी आप जितने भी फोटोज, इमेजेस, वो सारी चीज़ें जो देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, वी आर नॉट श्योर कि बुद्धा जो है वो एक्चुअली में वैसे ही दिखते थे। ओके, दैट इज जस्ट आवर इमेजिनेशन, दैट्स इट, वो हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे तो उनको लगता होगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ ऐसा है, राइट? यस, दिस इज द फैक्ट। व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो उनके जो फेवरेट डिसाइपल थे उन्होंने एक्चुअली उनसे पूछा कि क्या जो है मैं आपका आइडल बनवा सकता हूँ, तो ही एक्चुअली सेड नो, बट उन्होंने जो है कहा कि ठीक है आप स्तूपास जो है वो बिल्ड कर सकते हो, एंड हेंस दिस इज द रीजन वाई यू कैन फाइंड सो मेनी स्तूपास। इनिशियली जो स्तूपास बनाए गए थे वो बुद्धा जी के ही जो रिमेन्स थे उसके ऊपर बनाए गए, प्लस स्तूपास उन चीज़ों को भी लेकर के बनाए गए जो कि उन बुद्धा एक्चुअली में यूज़ करते थे। जैसे कि स्तूपास जो हैं, जैसे ऐसे बनते हैं ना स्तूपास, राइट, तो उनके बीच में कुछ तो रहता है ना, तो दैट वाज ईदर या तो वो बुद्धा के रिमेन्स हैं, या फिर जो बुद्धा कोई चीज़ यूज़ करते थे, कुंडल हो गया उनके जो हाथ में रहते थे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाटएवर ही यूज्ड, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उनके ऊपर जो है वो स्तूपास इनिशियली बनाए गए थे। ओके, तो इनिशियल और ओरिजिनल के हिसाब से बोले तो हिनायना इज द वन हु एक्चुअली फॉलोज द ओरिजिनल वन, एंड महायाना जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर लाइक, देखो इट्स When it comes to the religions and आप जो है बेसिकली आप जो फील करते हो, जो बिलीव करते हो, उसी के ऊपर आप उसी पाथ को फॉलो करना पसंद करते हो, राइट? खैर, सो these are the kind of this thing, the teachings. Now when it comes to the Theravada जो है वो थेरावड़ा जो है वो बेसिकली हिनायना सेक्ट का ही आता है। दिस इज ऑफ द हिनायना सेक्ट ओनली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये एंशिएंट बुद्धिज्म के तौर पे भी है। तो दिस इज ऑफ द एंशिएंट बुद्धिज्म, एंड इसके बाद लेटर ऑन इट वाज स्प्रेड टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। लेटर ऑन ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पे स्प्रेड किया, राइट? सो यहाँ पे वी गॉट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम जस्ट वन सिंगल आर्टिकल से आपको कितनी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल गई। सो थेरावड़ा बुद्धिज्म को जो है ये फॉलो करते थे, जो कि एंशिएंट फॉर्म है बुद्धिज्म का। लेटर ऑन इट वाज स्प्रेड टू दी साउथ ईस्ट एशियन, सॉरी दिस साइड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एंड ये हिनायना सेक्ट का जो है एक पार्ट है। Now Mathale Buddha Vihara, for he was this person Acharya Buddha Ghosha was also this particular person actually Mr. Lakshmaiya, he appreciated the Mathale Buddha Vihara for running a school in the name of Acharya Buddha Ghosha। तो बेसिकली स्कूल्स मतलब स्कूल भी जो है इनके नाम पे स्कूल भी जो है वो रन किए जा रहे हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है साउथ ईस्ट कंट्रीज का। बुधावनम एक यूनिक एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज पार्क है, राइट? ये दिस नाउ अगेन the archaeologists, they believe that the rock cut caves, the monastery and antiquities recovered from the surrounding areas shows the Buddhist connection between the two Telugu states and that of the Sri Lanka. Okay, अब यहाँ पे दो तेलुगु स्टेट्स बोल रहे हैं। Some people will be confused. जरा बताओ तो दो तेलुगु स्टेट्स कौन से हैं? Right, this is quite easy also. बहुत ईजी है, यू कैन वेरी इजली आंसर दिस। सो दीज आर द थिंग्स विच वी गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्या है? 3 होयसला टेम्पल्स ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, व्हाट सेट्स देम अपार्ट, राइट? हालांकि ये चीज़ हमने पहले भी कवर कर ली थी, लेकिन एक्सप्लेन पार्ट में फिर से आया है थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो लेट्स डू इट ऑल ओवर अगेन।
व्हेन इट कम्स टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो यहाँ पे जो है होयसला के 3 टेम्पल्स हैं जिनको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है, एंड दिस वाज डन इन द 45th सेशन विच वाज हेल्ड इन रियाद। रियाद में ये कंडक्ट हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 45th सेशन थी, तो वहाँ पे इसको डिसीजन लिया गया, ठीक है। और इसको किसमें मिला है, सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होयसलास अंडर द कलेक्टिव एंट्री, एक एंट्री करी गई है एंड वहाँ पे जो है एक नेम के अंडर सैक्रेड एनसेम्बलेंस ऑफ द होयसलास, उसके अंडर ही ये 3 टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का नेम दे दिया है, राइट। 3 टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तो 3 टेम्पल्स हैं, चिनकेश्वर टेम्पल जो कि बेल्लूर में है, होयसलेश्वरा टेम्पल जो कि हेलबिदू में है, और केशवा टेम्पल जो कि सोमनाथपुरा में है, ठीक है। 3 टेम्पल्स हैं। केशवा जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस बट केशवा टेम्पल है। यू विल बी हैविंग दिस पीडीएफ, तो आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो केशवा टेम्पल, ये 3 टेम्पल्स हैं होयसलास के जिनको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में नाम मिला है, एंटर किया गया है। इनको 12th से 13th सेंचुरीज के बीच में बनाया गया था, बिटवीन 12th एंड 13th सेंचुरी। नाउ होयसलास कौन थे, अब ये जान ले। देखिए होयसलास जो हैं वो बेसिकली, होयसलास जो हैं वो 10th से 14th सेंचुरी के बीच में कर्नाटका में, स्पेसिफिकली कर्नाटका में जो है इनकी एम्पायर थी। अब ये इनकी जो डायनेस्टी, होयसलास की डायनेस्टीज कब आई, जब इन्होंने जो है, द डायनेस्टी बिगैन एज प्रोविंशियल गवर्नेंस। पहले ये जो है वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, प्रोविंसेस हैं उनके अंडर, वहाँ पे ये वेस्टर्न चालुक्यास के प्रोविंसेस हैं, उन प्रोविंसेस के गवर्नर्स के तौर पे देवर डेप्यूटेड ओवर देयर। लेटर ऑन कभी भी ऐसा ही होता है दैट सपोज कि दिस इज द ह्यूज किंगडम, बहुत बड़ा एम्पायर है या फिर किंगडम है, तो दिस इज द पर्सन जिसके नाम से सपोज कि ए है, ए डायनेस्टी, जस्ट टेक द एग्जाम्पल दैट दिस इज द ए डायनेस्टी। अब ये जो ए डायनेस्टी है इसके अंदर अब ये बड़ा सा एरिया है जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस विल बी देयर। एज सून एज, जैसे ही ये जो है वीक होता जाएगी, ये डायनेस्टी वीक होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो प्रोविंसेस में जो भी गवर्नर्स होंगे, राइट, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन किंगडम। ये अपने किंगडम जो है वो खुद से अपने अपने बनाने लगेंगे, अपने एरिया को पूरे अपने कंट्रोल में लेने लगेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड टू द मुगल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द मौर्यास, ठीक है, टू द मौर्यास। दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड टू द गुप्तास, राइट। दिस इज द सेम थिंग जो कि हमेशा से होता आया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो होयसलास थे वो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर, बट एज द 2 डोमिनेंट एम्पायर्स ऑफ द साउथ। 2 डोमिनेंट एम्पायर्स कौन से थे, वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास। जैसे ही ये क्रम्बल होने लगे, जैसे ही ये वीक होने लगे, दे बिकेम द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल पीपल ओवर देयर। ये जो है पावरफुल पीपल बन गए एंड दे हेंस एस्टैब्लिश्ड द होयसला एम्पायर। उन्होंने जो है वहां पे एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ अब इसमें से जो 2 टेम्पल्स हैं यूनेस्को की लिस्ट में, वो कहाँ पर हैं, वो होयसलास के कैपिटल में हैं। तो होयसलास के 2 कैपिटल थे, एक बेल्लूर और दूसरा जो है वो हेलबिदू, जिसको कि द्वार समुद्र जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो हेलबिदू और बेल्लूर, बेल्लूर में क्या है, चिन्नकेश्वर टेम्पल, और हेलबिदू में होयसलेश्वरा टेम्पल। तो होयसलेश्वरा, तो ये होयसलास, तो होयसलास का जो कैपिटल कौन सा था, हेलबिदू, एंड जो चिन्नकेश्वर टेम्पल बेल्लूर, तो बेल्लूर में है। तो ये दोनों ही प्लेसेस इनके कैपिटल थे। प्लीज डू रिमेंबर, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इनके, सॉरी ये जो है, और हेलबिदू को ही द्वार समुद्र जो है वो कहा जाता था, ठीक है। नाउ व्हेन वर द सैक्रेड एनसेम्बलेंस ऑफ दिस चालुक्यास बिल्ट, इसको जो है कब बिल्ड किया गया था, तो इसको बिल्ड किया गया था, हाँ ठीक, इसको बिल्ड किया गया था, इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड
around 1117 AD by King विष्णुवर्धन। ओके, तो विष्णु, ये जो है चिन्नकेश्वर टेम्पल, ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है, जब उन्होंने चोलास को हराए थे। किसने, कौन, विष्णुवर्धन, ठीक है। ये 1117 AD में विष्णुवर्धन जो है उन्होंने चोलास को हराया और उसके बाद जो है ये इतनी बड़ी टेम्पल बनाए। अब जब भी टेम्पल्स देखिए इन द साउथ व्हाट यूज्ड टू हैपन, ये जब भी कोई बैटल, कोई वॉर जो है वो जीतते थे, तो इन ऑर्डर टू मार्क दैट विक्ट्री दे यूज्ड टू बिल्ड द ह्यूज टेम्पल्स। वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे, और वो बड़े टेम्पल्स बनाने के पीछे उनका बहुत सारा पर्सपेक्टिव होता था, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते थे, जिसमें से एक रीज़न ऑब्वियस सी बात है कि विक्ट्री होती थी, कि हम जो है वो जीत करके आए हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इज दी चिन्नकेश्वर टेम्पल, जिसको कि इन्होंने बिल्ड किया था, राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाती है कि ये जीते तो इसी वजह से इसको बिल्ड किया गया था, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज दी विजय नारायणा टेम्पल। अब यहाँ पे आराम से आप याद कर सकते हो, यू कैन वेरी इजिली रिमेंबर दिस थिंग, विजय बिकॉज दे वॉन, कौन, जो बैटल है वो बेसिकली चोलास के खिलाफ जीत गए थे, तो इसलिए विजय। नाउ नारायण वर्ड बिकॉज ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, दिस इज द रीजन व्हाई नारायण वर्ड एक्चुअली हैज बीन एडेड ओवर हियर, राइट। ये दिस इज द टेम्पल विच यू कैन सी, ठीक है, चिन्नकेश्वर टेम्पल। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के पीछे का रीजन क्या था, यू कैन सी दैट हाउ nicely this has been made, rock cut, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा इस तरीके से इसको कट करके बनाना, एज इफ जो है वो रस्सियों को फोल्ड करके, पीपल कैन यूजुअली कैन नॉट डू दैट, एंड इफ यू सी दीज इंट्रिकेट डिजाइंस so ब्यूटिफुल। मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास में यही बताती हूँ कि अगर 7 वंडर्स दुनिया में बोलते हैं कि भाई 7 वंडर्स है, इंडिया तो देखो, इंडिया में जब आओगे देन यू विल गेट टू नो कि कितने वंडर्स भरे पड़े हैं। जस्ट सिंपली सी एंशिएंट टाइम पीरियड में दीज पीपल मेड दिस थिंग, ये चीज़ें बनाए थे, एंड स्टिल द पीपल से दैट दे एक्चुअली डिड दिस थिंग बाय यूजिंग चिजल्स एंड द हैमर। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट बिल्डिंग सच अमेजिंग साइट्स, सच अमेजिंग टेम्पल्स just by using chisels and hammers? खैर, so this is the चिन्नकेश्वर टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये जो कुछ टेम्पल्स के मैंने इमेजेस यहाँ पर आपके लिए डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रिकेट डिजाइंस की बार बार मेंशन करी गई है, यू कैन सी द काइंड ऑफ ज्वेलरीज द पीपल आर वेयरिंग, द कृष्णा, हियर यू कैन सी द कृष्णा हैज बीन मेड, फ्लूट से ही पता चल जाता है कि भाई कृष्ण भगवान है, तो कृष्णा है। अब यहाँ पे जिस भी तरीके की ज्वेलरी और जो भी चीज़ इनको पहनाए गए हैं टू द अप्सरा एंड द कृष्णा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, हम कभी भी उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं, राइट, जो चीज़ें हमारे सामने दिख रही है उसमें थोड़ी बहुत इमेजिनेशन हो सकती है, राइट, बट हियर व्हेन वी लुक एट this is not the Apsara, right? I'm sorry for this, I guess again the god only, but I'm not getting the name है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ज्वेलरीज को देखो, इन सारी चीज़ों को देखो, तो आप कभी भी उन्हीं चीज़ों को ड्रॉ करते हो, यू ड्रॉ ओनली दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप देख रहे हो। तो जब आप इन टेम्पल्स को देखते हो, व्हेन यू लुक एट दीज टेम्पल्स एंड व्हेन यू लुक एट दीज काइंड ऑफ स्कल्पचर्स ऑन दैट, यू गेट टू नो कि भाई कितने सारी ज्वेलरी और किस तरीके के कपड़े, किस तरीके का पहनावा जो है वो उस टाइम हुआ करता होगा, ओके, बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट, बाय व्हाटएवर इज एक्चुअली अराउंड देम, यू नो, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको। खैर, एंड हियर यू कैन सी द होयसला एम्पायर, ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पर आप बेल्लूर हो, द कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज द वन, तुंगभद्रा इज देयर एंड द कावेरी इज ऑल्सो देयर। नाउ द वैष्णवा श्राइन, वैष्णवा श्राइन जो है वो केशवा टेम्पल इज द वैष्णवा श्राइन, जो कि बिल्ड किया गया था इन सोमनाथपुरा 1200s में, इन 1200 बाई सोमनाथ। अब सोमनाथ कौन थे, वो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग अंडर नरसिम्हा द थर्ड, ठीक है, नरसिम्हा द थर्ड के अंडर जो ये काम कर रहे थे, एंड ही वॉज द दंड नायका, दंड नायका,
राइट, he was the दंडनायका अंडर नरसिम्हा द फर्स्ट, जो कि होयसला किंग थे। अब आता है हमारा लास्ट टेम्पल, दैट इज द होयसलेश्वरा टेम्पल, जो कि हेलबीदू में है, एंड इट इज बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल। दो विष्णु टेम्पल, अब यहाँ पे कौन सा आ गया, शिवा टेम्पल। ये होयसलास के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेम्पल है, एंड अगेन दैट ऑफ द 12th century this was actually built. Now all these temples, अब यहाँ पे ये जो temples हैं, यहाँ पर इनको बनाने के लिए soapstone, ये जो टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसको बनाने के लिए सोप स्टोन जो है उसका यूज किया गया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सोप स्टोन, दीज आर द स्टोन्स, बट व्हाई द सोप वर्ड हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। सोप वर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली जो है इसको कार्व किया जा सकता है, बिकॉज इफ यू सी दीज काइंड ऑफ When you see these kind of sculptures, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है, और वो क्या है कि कैसे बनाया होगा। तो ये सोप स्टोन से बनाया गया है, जो कि बहुत ही आराम से जिसको कार्व किया जा सकता है, राइट। एंड ये एक रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि जिस तरीके की कार्विंग जो है वो करी गई है, बट स्टिल दीज आर द स्टोन्स ओनली। अब सोप के जैसे कट तो नहीं हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। इन टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे उसमें एनिमल्स जो हैं, डेली लाइफ के जो सीन्स हैं वो हैं, और एपिक्स और पुराणाज से भी जो है कुछ सीन्स को वहाँ पर बनाया गया है। जिस तरीके की ज्वेलरी, हेड गियर, क्लोथ्स, जो चीज़ें यहाँ पर पहनाई गई हैं स्कल्पचर्स को, उससे देख के पता चलता है कि किस तरीके की जो जीवन है एंड द पीपल मस्ट हैव बीन एट दैट टाइम। ये यहाँ पे जो होयसला, जैसे कि मैंने लास्ट जो हमारा डीएनए था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, DNEA, ठीक है, डेली एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि ये जो है वो बेसिकली वैसारा स्टाइल टेम्पल जो है वो है वैसारा, जो विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नगरा एंड द द्रविड़ा टेम्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे नगरा एंड द्रविड़ा टेम्पल्स में जो है द्रविड़ा टेम्पल्स, तो द्रविड़ा टेम्पल्स के ये जो शिखर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह रहती है, ठीक है। अब वहीं पे ही नगरा टेम्पल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स का जो शिखर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और इसके ऊपर कलश रहेगा, ठीक है, कलश विल बी देयर और द त्रिशूल विल बी देयर, लाइक दैट ओनली द थिंग्स विल बी देयर, राइट। तो ऐसा होता है। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना करके वैसारा स्टाइल टेम्पल होते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के जो शिखर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द वैसारा वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो दी वैसारा स्टाइल दे हैव बेसिकली यूज्ड इट, एक तरीके से इन्होंने जो है इसका यहाँ पर एक अमैल्गमेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दे हैव शोन। नाउ द पॉइंट ओवर हियर कि स्टार शेप, ये लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, बट अगेन आई एम टेलिंग यू व्हेन इट कम्स टू दी स्ट्रक्चर, तो इसको जो है स्टार शेप के तौर पे जो है वो बनाया गया है, ठीक है। स्टार शेप पे जो है लाइक दिस हैज बीन मेड, राइट। और इसी के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर्स, मेरे ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट दैट इज हाउ इट हैज बीन। ये जो इनका प्लेटफॉर्म है इट इज़ लाइक दैट ओनली, तो स्टार शेप्ड जो है प्लेटफॉर्म्स स्टेलेट, उसके ऊपर इसको बनाया गया है, एंड हैव सेवरल स्ट्रक्चर्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खासियत है इन टेम्पल्स की, एंड ये टेम्पल्स की बहुत बड़ी खासियत क्या है, दैट इज दैट दीज हैज बीन साइंड। अब साइन इसमें किसने किया है, दैट पीपल हु हैव एक्चुअली बिल्ट दिस, उन लोगों का जो है वहाँ पे साइन, मतलब उन्होंने जो है अपने नाम्स को वहाँ पे, नेम्स को जो है वहाँ पे उन्होंने कार्व किया है, एंड कुछ लोगों ने तो और भी डिटेल्स उसमें मेंशन कर, ठीक है। नाउ एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसमें वैष्णवा एंड शैवा दोनों ही टाइप के जो टेम्पल्स हैं ये होयसलास ने बनवाए थे, राइट। ये जिस टाइम बन रहे थे उस टाइम जैनिज्म भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, सो यू कैन सी दैट अलॉन्ग विद द हियर द जैनिज्म इज ऑल्सो फ्लरिशिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदुइज्म को भी जो है एक अच्छा खासा जो है वो पुश एक्चुअली मिल रहा है। अब यहाँ पे बेल्लूर के जो चन्नकेश्वर टेम्पल है उसकी कुछ खासियत बताई गई है, और खासियत ये है कि इसमें टोटल 46 पिलर्स हैं, ठीक है, टोटल 46 पिलर्स हैं, सब में 4 को छोड़कर बाकी सब में जो है वो डिफरेंट डिजाइन्स बनाए गए हैं, ठीक है। 4 आउट ऑफ 46
4 को छोड़ के, यानी कि 46 में से 42 जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिजाइन्स बनाई गई हैं और जिसमें कि बहुत सारी वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपको देखने को मिलेगी. इट मीन्स दैट दे वर सो गुड एट दैट, दे वर सो गुड एट दैट. नाउ व्हेन इट कम्स टू द केशवा टेम्पल जो कि सोमनाथपुरा में है, इसको 16 पॉइंट स्टार्स पे बनाया गया है. वो जो शेप मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो 16 पॉइंट स्टार के ऊपर जो है वो केशवा टेम्पल को बनाया गया है. इसको, ये जो टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू केशवा, जनार्दना एंड वेणु गोपाल. द केशवा स्टैचू हाउएवर इज मिसिंग ओवर हियर, दैट इज नॉट देयर. अब वी नेवर नो कि किसी ने चुरा लिया या फिर जो अंग्रेज जिस तरीके से सारी चीजें यहाँ से उठा करके ले जा रहे थे, क्या पता वो जो है लेकर के चले गए हों. वन मोर इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन ओवर हियर एंड दैट इज कि मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर, ये पर्सन ने हल्बेदू में बार बार जो है काफ़ी बार उसने रेड किया है एंड ओवर देयर उसको डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करी है 1300s में, अर्ली 1300s में, जो कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था. ही रेडेड अ लॉट मेनी टाइम्स. Now let's come back to the last topic, that is the 5 eyes. 5 eyes जो है वो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक बनता है. राइट, अभी ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इंडिया कनाडा रिलेशन जो है वो कितना ज़्यादा खराब हो चुका है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वन ऑफ माई DNAs, तो आप जो है वहाँ पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा. सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. Now here what we are going to talk about is the Canada's friends, 5 eyes. कनाडा के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 5 आँखें, 5 eyes. From the eyes only you can understand कि eyes बोले तो क्या, eyes जो है वो नज़रें क्या करती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं. एंड यू कीप ऑन चेकिंग थिंग्स, है ना, लोगों के ऊपर इधर उधर जो है सबके ऊपर नज़र रखते हो. So that is what these 5 eyes do. and ये लोग क्या करते हैं, these are the intelligence. यहाँ पे जो है इनकी सारी जो इंटेलिजेंस है, मतलब ये जो इंटेल इंफॉर्मेशन है, ये जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दे गिव इनपुट्स. 5 eyes कौन है, 5 कंट्रीज हैं बेसिकली. ठीक है, 5 eyes कौन है, 5 कंट्रीज है विच यू कैन सी ओवर हियर. USA, Canada, UK, Australia, New Zealand. Okay, Australia and New Zealand. So these are the countries which are the part of the 5 eyes. 1, 2, 3, 4, 5. So here you can see Canada. This actually came to light. ये जो है अभी न्यूज़ में क्यों आया? Because of the recent allegation which has been put by Canada on India. Canada जो है वो इंडिया पे उसने एलिगेशन लगाया है कि भाई आप जो है यू आर द वन हु एक्चुअली किल्ड खालिस्तानी निज्जर. ठीक है, उनको जो उस पर्सन को मारने के पीछे ये जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व है. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज दैट अब इन्होंने नेक्स्ट चीज़ ये पता चली यहाँ से कि यहाँ पर USA ने जो है इनको पहले से इंटेल दिया हुआ था. दे हैड ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन कि इस तरीके की कोई चीज़ जो है वो हो सकती है फ्रॉम इंडिया. राइट, अब USA जो है वो कनाडा के अपने मामलों में क्यों इंटरफेयर किया? सो द रीजन बिहाइंड इज दी 5 eyes. क्योंकि USA जो है इसके पीछे, मतलब USA is the part of this 5 eyes. That is the reason. 5 eyes, I have already told you which are the members of this. These are the ones: US, Canada, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. उन्हीं के बारे में जो है सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से ये 5 eyes का फॉर्मेशन हुआ है. अगेन एज आई ऑलवेज टेल, एक्सप्लेन्ड पार्ट इज द अमेजिंग पेज जहाँ पे आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलती है. नाउ द 5 eyes, ये जो इसका ओरिजिन है अगर आप ट्रेस करें तो ये ट्रेस बैक टू वर्ल्ड वॉर 2. कहाँ तक जाती है ये? वर्ल्ड वॉर 2 में जाती है. वहाँ पे UK और US जो है दे एक्चुअली डिसाइडेड टू शेयर इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से दे वर एबल टू डिस्पोज जर्मन एंड जापानीज. जर्मन और जापानीज दोनों को ही डिस्पोज जो है वो आराम से कर पाए. मतलब मेरे कहने का मतलब है दोनों को हरा पाए. कौन? UK एंड US ये काम कर सके थे. UK टू दैट ऑफ जर्मन
Germans, and when it comes to the US, who are the people? The Japanese. They were able to do that. अब यहाँ पे जो है 1943 में ब्रिटेन और यूएस ने जो है एक अग्रीमेंट किया जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? ब्रूसा, BRUSA, ठीक है, ब्रूसा, ब्रिटेन यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन यूएसए, दैट इज द ब्रूसा अग्रीमेंट. इन्होंने जो है ब्रूसा अग्रीमेंट किया एंड दे लेड द फाउंडेशंस फॉर व्हाट वुड बिकम द यूके यूएसए. लेटर ऑन जो है ब्रूसा क्या बन गया? यूके यूएसए अग्रीमेंट बन गई है, यूकुसा. लग रहा है कुछ जापानीज पढ़ रहे हैं. सो यूकुसा जो है ये एक्चुअली बन गया. राइट, सो दिस वाज एक्चुअली डन. लेटर ऑन यूकुसा जो है इट वाज साइंड इन 1946 ऑफिशियली. पहले इसको ऑफिशियली साइन नहीं किया गया था, लेटर ऑन ऑफिशियली इसको 1946 में साइन किया गया. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट टिल 1946 में जब इसको ऑफिशियली साइन किया गया था तो उसमें यूके और यूएसए इन्वॉल्व थे. लेटर ऑन इसमें कनाडा ज्वाइन किया. ठीक है, लेटर ऑन अब इसमें कौन ज्वाइन किया? कनाडा. कनाडा ने कब ज्वाइन किया? 1949 सॉरी. ठीक है, तो ये इसने 1949 में ज्वाइन किया. ठीक है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने 1956 में. ठीक है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया, बोथ ऑफ देम दे ज्वाइंड इन 1956. ठीक है, अब ये सारी चीजें हो रही थी बट पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. इनको इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन था ही नहीं. कब इनको इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिला? इसके बारे में जानकारी, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी 1980s में जाकर के मिली थी, 1980 में, 1980s में. ठीक है, नाउ later on what happened, the files related to this, the UK USA agreement, जो इनसे रिलेटेड जो फाइल्स हैं 2010 में जाकर के इसको रिलीज करी गई थी. अब यहाँ पे बात होती है कि ये जो फाइव आइज अलायंस है वो बेसिकली वर्क कैसे करती है. पहले तो ये बता दूं, इसमें जो पार्टनर कंट्रीज होती हैं दे बेसिकली शेयर इंफॉर्मेशन. ठीक है, किस चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन? उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे कोई इंटेलिजेंस अगर प्रोवाइड करनी हो, राइट, सो इंटेलिजेंस ये प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर एक्चुअली, दे से दैट दे आर एक्चुअली यूनाइटेड बाय द लैंग्वेज ऑफ देम, दे स्पीक इंग्लिश. ठीक है, तो दे आर यूनाइटेड बाय द कॉमन देयर शेयर्ड लैंग्वेज, the robust human rights and apart from that the common principles of rule of law. ठीक है, rule of law की लॉ की चलेगी. ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर बेस्ड अगेन PYQ आ चुका है, राइट, ऑलरेडी आ चुका है. तो एक एक जगह से आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड फ्रॉम देयर यू कैन रिलेट योर PYQs ऑल्सो कि रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड आया हुआ है, राइट. चलो अब फाइव आइज अलायंस के बारे में बात करते हैं. तो इन रीसेंट ईयर्स कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था तो उसको दबाने की ज़रूरत थी, बिकॉज USA UK दीज आर द काइंड ऑफ कंट्रीज जो कि हमेशा से रूल करती रही हैं. ब्रिटेन, कैन रिमेंबर obviously the Britishers, the colony, we were the colony, right. Now when it comes to USA, वो हमेशा से जो है ये पूरे वर्ल्ड का अपने आप को फादर मानता है. ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली हैविंग ऑल द काइंड ऑफ राइट्स. उसी के पास सारे राइट्स जो है वो है टू गिव लेक्चर टू द पीपल कि भाई तुम ऐसे करो और तुम ऐसे करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुमको तुम्हारे ऊपर काट सा लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. खैर छोड़ो. ठीक है, तो चाइना का जो राइज है उसको बैलेंस करने के लिए दे केम टुगेदर ऑल ओवर अगेन एंड यहाँ पे जो क्लोजर अलाइनमेंट होने लगा इन 5 कंट्रीज का. तो सोचो 5 वर्सेस 1 वाला, इट्स लाइक भारत जो इंडिया में एक स्टोरी आपको याद होगी, 1 भारत वर्सेस द 10 किंग्स, वो वाली स्टोरी, ट्राइब. Some have attributed their closeness, कुछ लोग जो होते हैं इनकी क्लोजनेस के पीछे का रीजन बताते हैं इनका कॉमन लैंग्वेज और इनकी जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ओवर द पीरियड जो बिल्डअप हो गई है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये बिल्ड हुई थी. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये इसमें और भी मेंबर्स ऐड होने लगे एंड दे हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड अ ट्रस्ट ओवर ईच अदर. ये ट्रस्ट बिल्डअप हो गई है. इन 2016 में 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल जो है ये
दिस थिंग एक्चुअली केम इनटू बीइंग, एंड इसमें जो है नॉन पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ध्यान देते हैं एंड उस तरीके की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं. दे रिव्यू एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंटिटीज ऑल्सो, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन. सो जो खालिस्तान वाला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ये लोग साझा कर रहे हैं. Right, so the exchange of mutual interest, the best practices, they keep on comparing, hold conference calls throughout the year and gather in person annually. यानी हर एक साल जो है, हर एक साल पे मतलब हर एक साल क्या, हर साल they have a meeting also, right? So this is what is actually being done, and इन सारी चीज़ों की वजह से इनकी closeness जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है. इन 2021 न्यूजीलैंड जो है वो जो है इट एक्चुअली स्टेड अवे फ्रॉम कंडेमिंग चाइना. चाइना को कंडेम कर रहे थे सभी लोग बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्शन इट वाज टेकिंग अगेंस्ट हांगकांग. हांगकांग को अपना मानता है, जिस पे भी हाथ रख दे चाइना दैट इज इट्स उसी का ही हो जाता है, तो उसको कंडेम नहीं किया, वो जो है बाहर रहा. अब यहाँ पे मेंशन आ रहा है उइगुर कमेटी को लेकर के, एक्चुअली उनको टारगेट किया जा रहा था. तो उइगुर कमेटी जो है कम्युनिटी जो है इनकी ये जिंगजियान जो प्रोविंस है वहाँ पर दीज द पीपल जो वहाँ पे रहते हैं. अभी उइगुर कमेटी ये कम्युनिटी जो है वो कौन है? दीज आर दी मुस्लिम्स. तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि यहाँ पर इनके मसैकर हो रहा है, उनको प्रॉपरली जो है फ्रीली उनको फ्रीडम नहीं है अपने रिलीजन को फॉलो करने की. सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर, राइट. उइगुर जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे. तो बाकी सारी कंट्रीज़ जो थी 4 कंट्रीज़ उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर अगेंस्ट में रखा, बट व्हेन इट कम्स टू दी न्यूजीलैंड उन्होंने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया था. तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि भले ही ट्रस्ट बिल्डअप हुई है, बट because of their personal interest they can back out also, and that is what has been shown by the New Zealand. Okay. अब इसके पीछे का रीज़न क्या, जैसे कि मैंने आपका बताया कि अपने पर्सनल रीजंस की वजह से. पर्सनल रीज़न क्या है? बिजनेस. ठीक है, तो इनकी अपनी काफ़ी अच्छी ट्रेड टाइज है इन दोनों के बीच में. दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है वो बैकआउट किया इस चीज़ को लेकर के. क्वाड का भी मेंशन किया गया है, तो इन द लास्ट डीएनए ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हो. ओके, एंड ऑकस ग्रुपिंग की भी मेंशन करी गई है. ऑकस क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस इन 3 लोगों की अलायंस है, राइट. सो आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड टुडेज डीएनए. मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने बहुत डिटेल में कवर करी. So if you liked it, and do write your answer in the comment section. See you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time. Jai Hind.